Dear audience, this is Rani from Kenman Foundation. I have my colleague Ms. Pinky with me, and as this week we are going with the various specialist doctors, and today we have on panel Dr. Bharat Kupreti, the major cardiologist in Gurgaon region, and he's the one who is currently associated with Paras Healthcare. Yeah. So welcome doctor, and Welcome, doctor. so doctor, we are facing a number of patients during this heart situation. We are having a number of questions which a common person doesn't know about the heart attacks. So my first question goes with you. Nowadays, heart attacks are happening in very young stage. What is causing that and how we can prevent that? Okay, first of all, thank you, Rani and Pinky. I am Dr. Bharat Kupreti and I am Associate Director Cardiology in Paras Hospitals, Gurgaon. The question is very relevant for today's generation. What we are seeing these days in India, we are getting more and more patients of heart attack occurring in young age. Young age we define as less than 40 years of age. पहले होता था कि 40 years से ज़्यादा की एज में हम सस्पेक्ट करते थे कि हाँ आप हार्ट अटैक के लिए प्रोन हैं, बट इन द लास्ट फ्यू इयर्स, इन अ डिकेड और सो, हम देख रहे हैं कि ग्रेजुअली दिस एज रेंज इज शिफ्टिंग. And there is very important demographic shift in our population which is responsible for this. हमारे जो youngsters हैं अभी वो लोग ज़्यादा stressful job कर रहे हैं. They are exposed to more stress. और उसके साथ साथ they are also consuming more of unhealthy food. So what they are eating is not good. Most of it is fast food, junk food. टाइम नहीं है, लंच के टाइम पे सिर्फ 15 मिनट का टाइम है. सो whatever is there, just eat it and go away. एक्सरसाइज बहुत कम कर पाते हैं बिकॉज ऑफ वेरियस थिंग्स. ज़्यादातर लोग काफ़ी बिजी रहते हैं और जब बिजी नहीं रहते हैं तो देयर आर अदर थिंग्स टू डू. एक्सरसाइज इज गिवन द लास्ट प्रायोरिटी एंड foremost of it is addiction to nicotine in any form. ज़्यादातर cigarettes. Cigarette by itself is very harmful. Cigarette associated with stress, यानी कि जो stress में है और फिर cigarette पी रहे हैं, that becomes even more harmful. तो ये कुछ factors हैं जो हमारी young generation को ज़्यादा heart attacks के लिए expose कर रहे हैं. Cigarette, which is the number one modifiable risk factor. जो छोड़ देंगे तो रिस्क हाफ हो जाएगा. प्रॉपर फूड, इफ वी कैन हैव प्रॉपर बैलेंस्ड फूड एट राइट टाइम्स, दैट इज द नंबर 2 फैक्टर विच कैन बी चेंज्ड. एक्सरसाइज रेगुलरली, दैट इज द नंबर 3 फैक्टर विच कैन बी चेंज्ड. और एक और फैक्टर जो ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते हैं बट स्टिल दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इज द डे नाइट शिफ्ट. जो हमारी यंग जनरेशन को काम करना पड़ता है कई बार डे में, नेक्स्ट डे नाइट में, नेक्स्ट डे 24 आवर्स, और बहुत ही इरेगुलर शेड्यूल्स हैं उनके. सो इफ दैट कैन बी मैनेज्ड देन आवर यंग जनरेशन कैन एटलीस्ट हैव सम प्रोटेक्शन फ्रॉम द अर्ली हार्ट अटैक्स. दीज आर द मेजर फैक्टर्स. एंड इन्हीं के साथ साथ में यंग जनरेशन में डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ों के इंसिडेंस भी बढ़ रहे हैं. तो इनके साथ में हमारे हार्ट अटैक होने की प्रोपेंसिटी ज़्यादा हो जाती है. सो दीज आर द फैक्टर्स व्हिच कैन बी चेंज्ड. Doctor, once somebody has angioplasty in young age or early 30s, then how this changes the life of that person? I would say if somebody, God forbid, he should not have a heart problem before 40 years or at any time in life, but अगर किसी को यंग एज में हार्ट प्रॉब्लम हो जाता है तो यू शुड नॉट बी टू मच वरीड. इफ यू हैव अंडरगॉन एंजियोप्लास्टी एंड योर ब्लड फ्लो इज प्रॉपर नाउ, सो योर फ्यूचर लाइफस्टाइल विल डिपेंड अपॉन द पावर ऑफ योर हार्ट. दैट इज कॉल्ड इजेक्शन फ्रैक्शन. यानी कि अगर इजेक्शन फ्रैक्शन जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टाइल पावर है, अगर वो एक रीजनेबल लेवल तक नॉर्मल है, then you will be leading almost a normal life in physical sense. If you were exercising before,
You can do most of the exercises afterwards also. खाने पीने में मेजर चेंज करना पड़ेगा. You cannot have that luxury of having those fast food or junk food repeatedly. खाने में बहुत अच्छे से मॉडिफिकेशन चाहिए, एक्सरसाइज रेगुलर होनी चाहिए, एंड स्मोकिंग बिल्कुल बंद हो जाएगी. स्ट्रेस लेवल यू हैव टू नो हाउ टू मैनेज देम. सो योर लाइफ विल प्रोबेबली चेंज फॉर गुड, बट इट हैज टू चेंज. अगर पंपिंग पावर कम हो जाती है किसी की अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक एट यंग एज, then that may lead to some limitation of physical activity. ज़्यादातर लोग फिर भी अपने प्रीवियस लेवल से 60 to 70% लेवल्स तक काम कर सकते हैं, बट they may face some difficulties, but with help of medications these days it's possible to increase their physical capabilities and alleviating their symptoms. So doctor, once somebody has angioplasty, does it affect that person's sleeping patterns as well? No, angioplasty per se does not affect the sleeping pattern. But sometimes we have seen the person is just like anxious and stressful. They're unable to sleep while lying down over the bed. Yes, that What is causing? the thing which is caused because of low ejection fraction. That means if pumping power is reduced, then body will have a tendency of water retention. That water gets accumulated into the lungs, and this situation is called a heart failure situation. So in those people in whom the ejection fraction is reduced, यानी कि हार्ट की पंपिंग पावर कम हो गई है, they may face such type of symptoms कि वो जब लेटते हैं तो उनको सांस में परेशानी होती है, and they prefer to sit. This thing can be improved with help of medication. So you advise medication for that purpose. Doctor, what we should do when someone has sudden cardiac arrest? Okay, that's important. ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो यंग एज में हार्ट अटैक होते हैं, जो ओल्ड एज में हार्ट अटैक होते हैं, उसमें सडन कार्डियक डेथ कम होती है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ज़्यादा होते हैं. जो लोग यंग फेस करते हैं हार्ट के इश्यूज को, यानी कि हार्ट अटैक को, उन लोगों में काफ़ी सारे लोगों में सडन कार्डियक अरेस्ट देखने को मिलता है. सडन कार्डियक अरेस्ट को पहचानना ऐसे है कि कोई आपके सामने था, बिल्कुल सब ठीक चल रहा था, एंड ही सडनली फॉल्स डाउन अनकॉन्शियस एंड लिम्प. तो फर्स्ट जो आपकी प्रायोरिटी होती है ऐसे में, उस पर्सन को सेव करना है, एक हार्ड पॉइंट पर सेव करना है, यानी कि आसपास में कोई आग, इलेक्ट्रिसिटी, पानी ऐसी कोई चीज़ नहीं है. ऐसी जगह पे ही शुड लाई डाउन. यू शुड चेक pulse if you know the carotid pulse or arm pulse and see his breathing, if he is breathing or not. And if these things are not present, pulse नहीं है और breathing भी नहीं है, so that means that patient is facing a sudden cardiac arrest. So at this point of time you should resort to the procedure called CPR or cardiopulmonary resuscitation. There is a proper procedure and proper training for CPR. बेसिकली इसमें चेस्ट को प्रेस करते हैं 80 to 100 टाइम्स इन अ मिनट, एंड माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन भी बीच बीच में कभी कभी देना होता है. तो देयर इज अ प्रॉपर प्रोसीजर कॉल्ड कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन. इफ कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन इज डन प्रॉपरली इन यंग पेशेंट हु हैज फेस्ड सडन कार्डियक अरेस्ट, and rest of the things also follow, like you have a proper time of ambulance and hospital, then many of the patients who face this kind of sudden cardiac arrest out of hospital, they can be saved. और हमारे यहाँ तो नहीं, बट आउटर कंट्रीज में और इवन यहाँ पर भी एयरपोर्ट्स पे we have those machines known as AED, electrical defibrillators. So in such situations those machines work wonders if used early. So if some paramedic or medical help is available at that time, and they have a AED also, then those patients out of those up to 60 to 70% can be saved. But yes, they will need to be hospitalized, and then they will go through angiography and angioplasty, but that's the next step, and that can further help us to improve the future life of the patient. This one was very important question for us. And Dr. a very common question is, how would we differentiate the gastric attack and the cardiac arrest?
This cardiac arrest, I told you, this is very dramatic. Yeah. A patient talking to you falls suddenly. So there's nothing more dramatic than falling unconscious in front of you. So this is called cardiac arrest. Unless you prove something else, you have to take it as a cardiac arrest and act accordingly, because that can save life. So that is a cardiac arrest. Rest of the things like gastric arrest, some gastric problem or those things, people will be conscious and they will tell you that I'm not feeling well, I'm feeling something in stomach. Some gastric acidity and heart attack sometimes are confusing. The symptoms are very matching. तो दोनों को यहाँ पे बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, साथ में स्वेटिंग हो सकती है. तो ऐसे टाइम पे वी शुड एटलीस्ट गेट इन्वेस्टिगेटेड एट द अर्लीस्ट. अगर सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा हैं तो उसी समय पे ECG करके देखना पड़ता है. ECG में ही हमें पता चलेगा कि ये बिकॉज ऑफ हार्ट इश्यू है या फिर कुछ गैस्ट्रिक इश्यूज आ रहे हैं. Sometimes the first ECG will not tell. It may take some time, maybe 2 hours, 3 hours, 4 hours. There are some blood tests, some other tests. But at least they should be evaluated at that time. और अगर वो like out of danger prove होते हैं, then rest of the things can follow. Okay. Doctor, my last question is, what sort of precautions are advised to the heart patients in this COVID pandemic? Yeah, that is important for today's perspective. So for COVID, we have to remember that COVID is a virus which gets entry through our oropharyngeal route, means या तो हमारी सांस के साथ अंदर जाएगा या फिर हमारे माउथ के थ्रू अंदर जाएगा या फिर आई के थ्रू अंदर जाएगा. जो हार्ट के पेशेंट्स हैं उनमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन इसलिए चाहिए क्योंकि बहुत सारे हार्ट के पेशेंट, जैसा आपने बताया, वो हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स होते हैं जिसमें ऑलरेडी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं. तो अगर उनमें कोविड भी साथ में हो जाता है तो दैट लीड्स टू सम एक्स्ट्रा सिम्टम्स एंड एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेशंस जो हो सकते हैं. अपनी मेडिसिन जो ऑलरेडी चल रही हैं उनको नहीं छोड़ना है आपको. वो सब मेडिसिन को आप रेगुलर रखेंगे. उन मेडिसिन का कोविड के होने या नहीं होने से कोई मेजर रिलेशन नहीं है. बीच में कुछ मेडिसिन का कोविड के साथ में रिलेशन ढूंढने की कोशिश हुई थी, तो ये पाया गया कि जो वो मेडिसिन थी उनका कोविड के कॉम्प्लिकेशंस के साथ कोई रिलेशन नहीं. ज़्यादातर हार्ट के जो पेशेंट्स होते हैं वो ब्लड थिनर ले रहे होते हैं, तो ब्लड थिनर आर एक्चुअली बेनिफिशियल फॉर दीज पेशेंट्स. तो अगर हार्ट के पेशेंट्स जिनको ब्लड थिनर चल रही है वो कंटिन्यू करेंगे क्योंकि वो क्लॉट फॉर्मेशन को होने से बचाएगा. जिन लोगों के हार्ट वीक हैं उन लोगों को भी अपनी मेडिसिन सब कंटिन्यू करनी है. सो मेडिसिन हैव टू बी कंटिन्यूड अनलेस स्पेसिफिकली टोल्ड बाय डॉक्टर कि ये हमें बंद करनी पड़ेगी. और बाकी जो अपने प्रिकॉशंस हैं वो थोड़े स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ेंगे उन्हें. कभी कभी अपनी फैमिली वालों से भी दूर बैठना पड़ेगा. जब अगर फैमिली में किसी को फीवर हो रहा है या फिर उनका गला खराब है, सोर थ्रोट हो रहा है, तो फैमिली से भी थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट दे शुड लाइक फॉलो देयर रूटीन्स. अभी बीच में लॉकडाउन के टाइम पे एक्सरसाइज वाज नॉट अलाउड, बट आई वुड सजेस्ट दैट एक्सरसाइज रेगुलरली इवन इफ एट होम, क्योंकि एक्सरसाइज करने से ही हमारी फंक्शनल कैपेसिटी इंप्रूव होती है एंड दैट लीड्स टू प्रॉपर गुड इम्यूनिटी. सो इट्स गुड टू एक्सरसाइज and it's good to follow the dietary precautions. और अगर किसी हार्ट के पेशेंट को अनफॉर्चुनेटली कोविड हो गया, जैसे कि हमने यहाँ कभी कभी देखा भी है कि कुछ हार्ट के पेशेंट थे जिनको कोविड हो गया, तो जो 14 डेज वाला टाइम है, जो इनिशियल 14 डेज वाला टाइम है, उसमें आपके डॉक्टर कुछ ब्लड थिनर्स आपको एडवाइस करेंगे. अगर पहले से चल रही है तो वो भी कंटिन्यू होगी. उसके अलावा कुछ एडिशनल ब्लड थिनर्स की ज़रूरत पड़ सकती है, वो आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे. ब्लड लेवल्स देख के कुछ टेस्ट होते हैं, D-dimer, CRP, ये सब टेस्ट देख के डिसाइड किया जाता है कि हमें कुछ और मेडिकेशन इसमें बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी है. देन देयर आर ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशंस ड्यूरिंग दोज पीरियड्स. उनको देखते हुए हमें आपकी जो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन हैं उन्हें अप या डाउन करना पड़ता है. बेसिकली अगर किसी हार्ट पेशेंट को कोविड हो गया है तो नंबर 1 ही शुड बी इन हॉस्पिटल प्रेफरेबली.
घर पे मैनेज करना मुश्किल होता है, अगर स्पेशली अगर हार्ट में इजेक्शन फ्रैक्शन भी कम है तो उसको घर पे मैनेज करना मुश्किल होगा। अगर उसका इजेक्शन फ्रैक्शन ठीक है देन वी मे टेक अ लिबर्टी, बट उसमें भी हमें सबसे पहले डॉक्टर से मिल के एक इवैल्यूएशन करवाना पड़ेगा। वंस इट्स प्रॉपर्ली इवैल्यूएटेड एंड डॉक्टर फील्स दैट you can isolate at home, then you can isolate at home. But most of the time जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है पहले से और उनको कोविड हुआ है, they have to be in hospital and under proper guidance. Thank you so much, doctor. Thanks, Dr. Preeti, for your valuable time. So, dear viewers, watch our video with the specialist, and if you have any further questions, you can call us on our helpline number or either WhatsApp us.